So, guys, I would like to thank each one of you for taking out your time. आप लोगों ने अपने बिजी स्केड्यूल में से ये टाइम निकाला और आई नो कि वैसे भी न्यू ईयर ईव का टाइम है, तो आई विल नॉट वांट टू होल्ड यू गाइस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बस हम विद इन 2 to 3 मिनट्स स्टार्ट कर लेंगे। लेट द फोक्स ज्वाइन इन, पीपल आर ज्वाइनिंग इन टू द सेशन। तो आज हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि ये होती क्या है, हाउ दिस गेट्स डन, एंड व्हाट वी हैव डन इन लास्ट an year we have been doing. So we introduced an algo few years back, तो उसके बाद से हमारी क्या प्रोग्रेस है, तो we'll discuss all of that part. We'll just wait for a few minutes before we start, and there I'll take you guys through all of it, the presentation. तो मुझे और 5 मिनट, 2 से 3 मिनट दीजिए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ हाँ। Just unmute myself. Today we'll take another minute before we start. We'll today talk about forex trading, its nuances, explain in detail कि forex trading होती क्या है। इससे आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा इस मार्केट के बारे में। So we'll take another minute for the other folks to join in, and then we will start this session. So this is going to be very fruitful session for you guys, as इससे आपकी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी about the global market and the forex market. So I think guys it's 5:04. We'll wait for another minute. A lot of folks have joined in. We'll just wait for another minute, and then we will start the presentation. In case people who will be joining in between, we'll be recording the session so that they can go through it, even if they are not able to attend from their schedules. A lot of people actually told us that they are traveling because of the holiday season, and a lot of people are actually have started their they have started their holidays from today evening. तो बहुत सारे लोग पार्टी मूड में भी हैं, तो वी नो कि एंड वी हैव गिवन अ वेरी स्मॉल टाइम. So let's start, guys. I am Rajesh Singla, founder of Planify. So today we have got another thing for you in forex trading. So I'll talk about in detail कि what is forex trading and what we can do in forex trading. होती क्या है ये वाला, and we'll keep it very interactive. Even in case people have questions, I like to open up the deck in the end for discussions. आपकी बहुत सारी queries होंगी, I know. First of all, I would like to thank each one of you for taking out time from your busy schedule for this session. I'm sure I'll be able to utilize your time. You'll learn a lot in this session because we are going to talk about a new product, especially
For a lot of Indians, it will be a very new product. Again, it's a very unorganized thing, but we think this is going to be next thing. If especially India wants to be a global leader, अगर इंडिया में हम अपने आप को ग्लोबल लीडर की तरह देखना चाहते हैं, तो हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में और फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके ओपन अप होना पड़ेगा. तो we'll talk about these in detail today. So I think just for the folks who me, I am Rajesh Singla, founder of Planify. So we have Planify Capital and Planify Enterprises. Obviously, we deal in startup, MSME, pre-IPO unicorns, and this always have been an investment platform. Or investment platform, mein, we have been very blessed to get a lot of good companies. We have done 31 exits. अगर उन 31 exits में किसी ने मतलब even if people would have put in 10 lakh rupees each in these 31 companies, the 3 crore 10 lakh rupees investment is today worth 17 crores. So that is we have generated for our investors in last 5 years. 450% overall हमारा absolute return है और CAGR return, annual CAGR return 117% है. And investing has always been a cup of tea. We are very good in picking up companies with the God grace, the team, the analyst team which we have got, the kind of analysis we do, वो सारी चीजें के बारे में आप लोग काफी जानते हैं. And I'll not want to talk much about Planify. I'll want to come to our today's topic and I'll again not go through the products which we offer because ये सारी चीजें तो आप जानते हैं. I will want to talk about the thing which is new, and that is forex trading and the forex market. Now, first question people ask me, यार ये forex है क्या? मतलब what is this forex? So forex is basically when you trade in, when you do any transaction, it happens in any of the currency, है ना? अगर आप मतलब if you go 2000 years back, there was a time when everything used to trade in terms of gold. अगर एक आदमी को दूसरी जगह पर पैसे भेजने हैं तो हर चीज गोल्ड के हिसाब से की जाती थी. एवरी द बाटर वाज यूज्ड, द गोल्ड वाज यूज्ड एज अ बाटर. तो गोल्ड की ट्रांजैक्शन, गोल्ड के अगेंस्ट सारी की सारी चीजें खरीदी या बेची जाती थी. Let's say someone is in the food industry, someone is in the textile industry, someone is in different industries. तो हर चीज को मैप किया जाता था गोल्ड के अगेंस्ट और गोल्ड के करस्पॉन्डिंगली सारी की सारी चीजों की खरीदी या मतलब बाइंग और सेलिंग हुआ करती थी. Now from this the market moved because gold was not very safe while people traveled from one place to another, and it was very bulky also. So a lot of countries from gold moved to silver and then copper. A lot of kings used copper chips to trade in currencies, है ना? currencies के बजाय मतलब currency तो होती नहीं थी पहले. copper के अगेंस्ट भी, तांबे के अगेंस्ट भी उन्होंने currency की ही फॉर्म में सारी की सारी trading happened in terms of then copper also. But then again, because of the metals, it is very heavy in nature or it is very bulky and it is not easy. It then it basically transformed from, and the evolution of printing after 1800 century, evolution of printing के बाद everything moved to paper thing. और हर चीज पेपर की फॉर्म में. तो गोल्ड के अगेंस्ट पेपर प्रिंट होने लगा और हर कंट्री ने अपनी अपनी करेंसी फॉर्म की और उसके बीच में ट्रेडिंग होने लगी. और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हर चीज पाउंड के बीच में. पाउंड वाज द डिफॉल्टो करेंसी फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड. एवरी ट्रांजैक्शन लाइक 100 years before, if we were born, every transaction used to happen in terms of pound. And post World War One and World War Two, basically when all the countries had major problems, especially Europe, जहां बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई, मतलब there was a lot of war in Europe and there was a lot of repercussions which Europe had to pay because of the World War. Even Japan was out and dusted because of the Hiroshima and Nagasaki attacks. Post that, America presented themselves as the default currency. They had around 22,000 ton kg of gold.
22,000 टन केजी के अगेंस्ट, गोल्ड के अगेंस्ट उनकी जो करेंसी थी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया इन 1945 टू अराउंड 22 कंट्रीज, एंड देन दे बिकेम द डिफॉल्टो। तो हर चीज यूएस डॉलर के टर्म्स में ट्रेड होने लगी। सो टुडे इफ वी आर एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर और if we are exporting some service, we are taking dollars from them। और अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर if we are importing some let's say if we are importing some crude oil, तो भी हम डॉलर्स की टर्म्स में कर रहे होंगे most of the time। and because dollar became a default currency in last 80 years, we have seen the rise of dollar। मतलब at the time of independence, ₹1 के बीच में $3.5 आया करते थे। 1 rupee used to have $3.5। नाउ $1 कॉस्ट अराउंड ₹85, है ना, 84। तो धीरे धीरे डॉलर की वैल्यू बढ़ती रही। बहुत सारी कंट्रीज के लिए इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि डॉलर की वैल्यू ज्यादा अप्रिशिएट होना, बहुत ज्यादा हो। डॉलर बिकेम, बिकॉज इट वाज अ डिफॉल्ट हो, तो बहुत कंट्रीज को फर्क पड़ता है जो इंपोर्ट कर रही है या एक्सपोर्ट कर रही है, कि करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो। और इसी वजह से फॉरेक्स की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। मतलब राइट नाउ देयर आर अबाउट 220 कंट्रीज, एंड इट अक्रॉस 220 कंट्रीज इफ यू टेक द कॉम्बिनेशंस, लाइक अगर कॉम्बिनेशंस की भी मैं बात करूं फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तो उसमें तकरीबन 48,000 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। In India, right now, we are at a very fancy stage of currency trading. In 2008, we started a currency exchange. It only has 4 currencies. In India, you can only buy US dollar in rupees, or you can buy euro in rupees, or you can buy pound in rupees, or you can buy Japanese yen in rupees। सिर्फ 4 ही करेंसीज हैं, बट इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एंड इंडियन स्टॉक मार्केट हम इतना ट्रेड करते हैं, हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, एंड टुडे वी आर हैविंग अराउंड $2.5 billion worth of transaction which happens on our NSE and BSE exchange on an average per day, which is around 20 to 22,000 crores। Whereas in forex trading, right now per day volume is close to $6.6 trillion। तो $1 trillion is equivalent to 1,000 billion dollars, और $1 billion is equal to around 8,500 crore rupees। तो $1 billion में 8500 करोड़ है, और $1 trillion has got 1,000 billion। तो डेली का फॉरेक्स ट्रेडिंग का वॉल्यूम $6.6 ट्रिलियन का है। मतलब इट इज वेरी मतलब इट इज वेरी हार्ड टू इमेजिन द काइंड ऑफ वॉल्यूम इट हैज गॉट, because everything happens in form of currencies। like you have to trade, मतलब आपको कुछ इंपोर्ट करना है, आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है। if countries needs to move money, everything will be done in the form of foreign currencies, which is termed in forex। so this is the biggest marketplace across the world in any assets। मतलब इससे बड़ा asset class कोई भी नहीं है, and there is no one even closer in terms of volume, या फिर कोई इसको बीट भी करता हुआ हमें नहीं नजर आता। इट्स अ मोस्ट लिक्विड मार्केट। इवन टुडे, even after 2000 years, gold is defaulto। gold is the most liquid asset across our globe। सबसे ज्यादा लोग मतलब gold is still considered to be the safest heaven। whenever there is any crisis, people will want to buy gold। especially in India, we want to buy gold for our children, thinking कि इसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी, तो our children will be able to take advantage। because currencies के बीच में भी लोगों को बहुत बार विश्वास नहीं होता कि दिस कंट्रीज करेंसी विल बी स्टेबल और नॉट। ऑल्दो इंडिया और हमारी करेंसी तो बहुत स्टेबल है, बट देन देयर आर कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे एंड अदर कंट्रीज जहां पर इकोनॉमी फेल हुई है। तो उसकी वजह से बहुत लोग, वहां के लोग सारी अपनी वेल्थ को गोल्ड की फॉर्म में या यूएस डॉलर की फॉर्म में रखते हैं। So in forex market, what is the things which gets traded? First is the currencies। as I said, there are 220 countries, और 220 countries में से there are about 48,000 combinations। तो आप अगर यूएस डॉलर को यूरो में खरीदना चाहें, या यूरो को ऑस्ट्रेलियन डॉलर में खरीदना चाहें, all those combinations are possible। then you can obviously trade in commodities। in commodities mainly is metals, where gold, silver, platinum,
and other metals comes in, copper and all. And then is crude oil. Oil may be Brent crude and other crudes comes in. And then the new world of cryptocurrencies, your Bitcoin, Litecoin, Ethereum, all of these things happen. So we will talk a bit more about the currencies. So right now, or I'll talk in detail मतलब later in my slides. तो यहाँ तक मैंने अभी ग्लोबल फॉरेक्स की बारे में बात करी है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में और इंडियन स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स के बारे में मैंने बात करी एंड व्हाट हैपेंस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग आई हैव टॉक्ड अबाउट इट. नाउ व्हाई ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट, मतलब पीपल टेल मी यार कि क्या जरूरत है, मतलब व्हाई डू वी इवन नीड टू लुक एट इट. इन इंडिया वी हैव एनएससी, वी हैव बीएससी. डू वी इवन नीड टू हैव अ, मतलब डू वी शुड वी ट्रेड इन ग्लोबल फॉरेक्स, इज इट वर्थ इट? पहला क्वेश्चन ही आता है ना, व्हाई आई शुड इवन लुक एट इट. तो देयर आर 5 reasons to it. First of all, it is open 24/7. So the market opens at Monday 4:30, when the exchanges open in Japan as well as in Australia and New Zealand, and till Friday late night, till 2:30 it is open. तो मतलब ये 24/7, 24 घंटे इंटू 5, 24/5 कहना चाहिए, 24/7 नहीं, 24/5 डेज होती है. तो आपके पास ऑप्शन है, जब भी आपको ट्रेड करना हो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, रादर देन स्टॉक मार्केट जो भी हमें 9 to 3:30 का वॉलेटिलिटी देती है. Second thing here is which is again very interesting, that we don't need to pay taxes. Now this is a मतलब taxes पे हम अगर छोड़ना चाहें तो we can avoid paying taxes, because in India right now it does not comes under SEBI regulation. सेबी ने अभी तक इसको इंडिया में प्रॉपरली फॉर्मलाइज ही नहीं किया है, तो उनकी रेगुलेशन में नहीं है. एंड इन आई विल टॉक अबाउट कि ये ट्रेडिंग होती भी कैसे है. तो आवर गवर्नमेंट कैन नॉट बेसिकली ट्रैक इट. इफ यू बेसिकली ट्रेड इन इंडिया, you would realize कि how much hassle it is actually, कि अगर आप इंडिया में ट्रेड करते हैं, स्पेशली इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट, लेट्स से अगर आपके पास एक ठीक ठाक सा 5-7 लाख 10 लाख रुपए भी ट्रेड करने के लिए है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, बाय द ईयर एंड यू विल एंड अप डूइंग अ ट्रेड ऑफ मोर देन 100 crores. एंड इट इज वेरी कम्बरसम टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स, क्योंकि सारी की सारी इनकम कम्स अंडर बिजनेस इनकम. Government consider all the trading thing in business income. तो business income के correspondingly आपको मतलब पूरी की पूरी मतलब as a company is run, you have to submit all the documents, all the processes has to be done in similar way, और उसी के correspondingly आपको मतलब taxes भी pay करने पड़ते हैं. And especially because it's a business income, government expect you that you will be making profit. And if the trader has not made profit, it becomes very cumbersome for them to showcase profit even though they have not made it. तो ये एक बहुत ही बड़ी hassle है इंडिया में अभी. I think this needs to evolve even after our prime minister. So I'm a big fan of our prime minister Narendra Modi, but still he has to do a lot of things to make ease of doing business. After a lot of initiative, even after taking a lot of initiative, we are still ranked at 77 number across the world in ease of doing business. और इतना पीछे रैंक है हम कि पाकिस्तान also comes in front of us in terms of ranking for ease of doing business. We have got so many compliances. If you have to open a demat account, you go to a stockbroker and he'll tell you the hassle he faces, or you would have even felt the same. Even after Zerodha and Grow and all other platforms, they have made the life still very convenient, but it still needs a lot of regulation. It still needs a lot of KYCs, which other countries do not need. मतलब आपका account you can open in 5 minutes. Like it's like a 5-minute process. It's that simple to to trade. You can open a trading account very easily, and there is no as such मतलब वो कोई पंगेबाजी वाली चीज नहीं है कि भाई बाद में इनकम टैक्स को भरने के लिए देयर विल बी सो मेनी थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी डन. तो ये एक अनदर रीजन है, क्योंकि आपको टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते.
तो बहुत सारे ट्रेडर्स के लिए ये बहुत बड़ा रीजन है कि दे लुक एट ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट, or because they don't need to really pay any 15% short term capital gain or 10% of capital gain. The third biggest reason, and out of all of these reasons, I think this is the biggest reason why people need to look at it, because we get a 500x leverage. So what is now a 500x leverage? When the stock market even started in India, जब 1994 में BSE NSE पे ट्रेड होता था, there used to be a leverage of 500 times. मतलब आप 1 लाख रुपीस से 5 करोड़ के शेयर्स को खरीद या बेच सकते थे. फिर वो 500x लेटर ऑन कम करके 100x कर दिया गया. फिर 100x से it was reduced to 50x, then it was reduced to 20x, then it was reduced to 10x, 5x, 2x, and now it is at 1x. मतलब even if you would be a trader 4 or 5 years back, the margin you would get to trade was close to 10x, जो कि अब almost 1x कर दिया गया है. And SEBI has a point, they say कि अगर आपका leverage कम होगा तो then you might not end up losing money. बट अभी कुछ 2 या 3 महीने पहले की बात है, they have put a regulation where in fact Zerodha has also implemented it. Once you log into Zerodha, there is a disclaimer which gets popped up that this 89% or 90% of the traders have lost money, and what kind of brokerage you guys are one trader is paying while he trades on the platform. The irony of this thing is कि 90% ट्रेडर्स अभी भी लूज कर रहे हैं मनी, बट लेवरेज उनके लिए अभी भी इतना कम होने के बावजूद 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी. तो देन द पॉइंट इज कि मतलब लेवरेज से तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. मतलब व्हाट आई हैव फेल्ट, इट इज बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी. स्टॉक मार्केट्स आर वेरी वॉलेटाइल गाइस. आप मतलब इफ यू ट्रेड एंड इफ यू सी, मतलब स्टॉक मार्केट में 10% की मूवमेंट इजीली हो जाती है, 5% मूवमेंट इजीली हो जाती है एक ही शेयर में एक ही दिन में. एंड देन देयर आर स्टॉक्स व्हिच कैन गो डाउन 90%, एंड राइट नाउ मार्केट इज गोइंग अप एंड इट कैन गो क्रेजी लेवल्स, है ना. एक 10 रुपए का स्टॉक 100 रुपीस भी बन जाता है. तो ये वॉलेटिलिटी जो है ये बेसिकली ट्रेडर को किल करती है रादर देन लेवरेज, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है. बट फॉरेन मार्केट्स आज भी 500x के लेवरेज पे वर्क करती हैं. एंड आई टॉक अबाउट द करेंसी मार्केट नेक्स्ट स्लाइड. Because you get a 500x leverage, so if someone would have invested, let's say 1 lakh rupees, he can easily take a position of 5 crore. And if he or she is a good trader, or if he or she is following a good algorithm or algorithm, they can generate extreme amount of wealth for themselves. ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है जो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट प्रोवाइड नहीं करता, जिसकी वजह से हमें लगता है कि पीपल शुड डेफिनेटली लुक एट ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट. Then comes the fluctuations. Now, as I said कि fourth biggest reason कि stock market is very volatile, बहुत ऊपर नीचे होती है. But let's compare it to currencies. आपने currencies को देखा होगा कि it hardly moves. मतलब this year we are at close to 84 rupees. A dollar is equivalent to 84 rupees. पूरे 1-2 साल के बाद पता लगता है from 84 it has moved to 85. एंड इफ देयर इज अ वेरी बिग फॉल तो पता लगता है 10-15 पैसे टूट गया, ये 10-15 पैसे बढ़ गया. तो वॉलेटिलिटी कम है. क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है, द लेवरेज विच यू गेट, यू एंड अप जनरेटिंग अ वेरी गुड मनी. मतलब इफ यू आर अ गुड ट्रेडर यू कैन एक्चुअली जनरेट अ लॉट ऑफ वेल्थ, बिकॉज वॉलेटिलिटी एंड करेंसीज आर स्टेबल. मतलब इट इज नॉट कि 84 रुपीज की करेंसी ऑल ऑफ अ सडन 40 रुपीज हो गई और फिर वो 84 हो गई. इट हैपेंस इन क्रिप्टो, but it does not happen in currencies, and that is so we don't trade in crypto, we only trade in currencies. तो हमें इसलिए करेंसी ट्रेडिंग बहुत अच्छी लगती है अगर आपके पास अच्छा लेवरेज हो. The same opportunities right now not available in India. So this is one of the biggest reason again why we feel कि currency trading, and India needs to open up. Say today if I need to send in Dubai I need to send dirham, or if I am going to Dubai and I need dirham, आई कैनॉट बाय इट. मतलब मुझे पहले डबल कन्वर्जन देना पड़ता है. पहले मैं यूएस डॉलर खरीदता हूँ और यूएस डॉलर देन गेट्स कन्वर्टेड टू धर्म. इवन इफ यू गो टू फॉरेक्स बैंक एंड यू आस्क अबाउट द एंट्री केसेस, दे विल टेल यू दिस.
and it should not be like that, no. Matlab, today we are a global, everything is a global village, we are very well connected. Even if you are going and buying, going to Australia, Australian dollar लेना है आपको, New Zealand dollar लेना है आपको, China में आपको Chinese का yuan लेना है आपको. There are so many countries which are now very close with India. Matlab, we go, we travel, we do vacations, and nothing happens in a single shot. Why do we need to even pay twice for the conversion? तो ये इस चीज के लिए इंडियन मार्केट को ओपन अप होना पड़ेगा, स्पेशली इफ वी रियली वांट टू बिकम अ ग्लोबल करेंसी या ग्लोबल पावर. इट इज द foremost essential thing which needs to happen for India, and I think it will happen soon, because यूएस डॉलर के बाद जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट आई, वो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में भी यूएस हैज टेकन द फर्स्ट पोजीशन इन 2014. दे हैव लॉन्च्ड देयर own cryptocurrency in the form of USDT. I'll talk about it in detail in our next slides. तो मैं उसके बारे में भी बात करूंगा. And India also are going to launch their digital currency very soon after China. So we are the only 3 countries right now which are having the technology or the resources to even launch this. And if we even if we are third and we take a pioneer position, I think there will not be any looking back after say 50 to 100 years. So fluctuation is another reason why we feel people should trade in global forex market. Then the concept of spread. So foreign key markets mein there are no brokerages. You don't pay any commissions. Now how does people then work? So in matlab now I'll explain what is the difference between a spread and a commission first. In a commission, let's say you are buying 100 rupees का एक शेयर आप परचेज कर रहे हैं, 1000 शेयर्स का लॉट है, तो your total transaction value is 1 lakh rupees. Now on those 1 lakh rupees you pay up some brokerage in the form of commission. It could be 0.1%, 0.2%, even if it is a flat rate of Zerodha or anyone की 15 रुपए or 15 rupees or 20 rupees, we'll be paying some commission fee on that 1 lakh rupees, and then there will be STT, security, stamp duty and all of other taxes. उसके बाद हमें पता लगता है वो 1 lakh rupees का एक्चुअली में the cost of that 1 lakh has, once we add everything, तो हमारी total investment actually 1 lakh 250 बनी है ना. This happens and even if we sell it, the same process happens. Now this is how commission works, but how spread works. तो बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि रादर देन राजेश पुटिंग द ट्रेड एट 100 रुपीज, वी विल पुट द ट्रेड एट 99 रुपीज 0.75, सो दैट सारे ब्रोकरेज सब कुछ ऐड वैड हो भी जाए. तो आर मतलब वी विल अज्यूम कि हमने मोटा मोटा 100 रुपीज पर ले लिया, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि हमने वो 100 पे लिया है वो, या फिर हमने 99.95 पे लिया है, या हमने 100.05 पे लिया है. बिकॉज वो इतनी बारीक कैलकुलेशंस करना इज एक्चुअली नॉट, मतलब वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है एक नॉर्मल किसी भी ट्रेडर के लिए. तो पीपल डू थोड़ा सा कम पर खरीद लेंगे एंड दे विल बाय, दे विल सेल अ बिट हायर थिंकिंग कि ब्रोकरेज वगैरह की कॉस्ट निकल जाए. द सेम कॉन्सेप्ट हैपेंस इन स्प्रेड्स, बट हियर you put a trade at $100. So rather than at $100, it gets executed at 99.75. So that 0.25 spread goes to the broker and all other charges, है ना. वो सारे चार्जेस वहीं निकल जाते हैं, बट आपका ट्रेड $100 के हिसाब से खरीदा जाता है. Once you see the fluctuation, you see any stock, you'll always realize there is so much liquidity. It will always keep on hovering. 100 rupees वाली चीज वो 99.75, 100 rupees 25, it will keep on vibrating in a small tight range, है ना, हमेशा चल रहा होगा. And we have seen it for a 20,000 crore market. Now assume now let's see this for a 6.6 trillion dollar market. वो fluctuation और fast होती है. It keeps on happening. So you do not end up paying any brokerage. आपको कोई brokerage देनी नहीं, वो मार्केट के ही रेट से ही आपका ट्रेड हो जाता है थ्रू इन द फॉर्म ऑफ स्प्रेड्स. सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई पीपल शुड लुक एट ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट. सो आई टॉक्ड अबाउट ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट कि व्हाई वी नीड टू, अगेन आई विल सम इट अप बिफोर वी मूव अहेड,
कि व्हाई वी पीपल शुड सी टू इट, हमें टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते. सो इट इज नॉट कि हमें टैक्सेस पे नहीं करने. इफ समवन वांट्स टू पे टैक्सेस ही कैन स्टिल पे टैक्सेस. देयर इज नो हार्ड बाउंड थिंग कि भाई इंडियन गवर्नमेंट को आप बता नहीं सकते हो. आप बिल्कुल बता के यू कैन पे टैक्सेस एज पर नॉर्म्स, और आप बिल्कुल टैक्सेस पे कर सकते हो. बट मतलब इट्स अ बेसिकली अ चॉइस ऑफ द पर्सन, है ना. सो इवन इफ यू वांट टू पे टैक्सेस, यू कैन पे टैक्सेस, बट इफ यू वांट टू अवॉइड इट, देयर इज एन ऑप्शन. सिमिलरली लेवरेज आपको बहुत जबरदस्त मिलता है. 500 टाइम्स का लेवरेज जो मैंने बात करी कि यू गेट अप एंड अप टेकिंग अ सच अ बिग लेवरेज बिकॉज देयर इज अ वेरी लेस फ्लक्चुएशन इन द करेंसी में तो हार्डली कुछ फ्लक्चुएशन होती है. एंड इफ यू आर अ गुड ट्रेडर यू विल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. और स्प्रेड्स नहीं है वहां पर, सॉरी कमीशंस नहीं है, स्प्रेड्स हैं, तो आपको कमीशन नहीं पे करना पड़ता. और ये 24/7 की मार्केट ओपन है. ये नहीं है कि इट इज ओपन ओनली फॉर 5.5 hours or 6.5 hours, I should say. So these are the basic reasons. Now let's see ki what we have brought in. So we have brought in another company, Preferred Capital. It is basically our sister concern company. It is getting operated from outside India right now. In India, we do not have any channel to get it formalized. Once it happens, we will surely get into India also. But by that time, we feel ki we can actually become very big in this market. यहाँ पे 1,000 crore और 10,000 crore का भी फंड आप मैनेज या मतलब आर basically this forex market, why it is so organized or why it is so big is the tools which is available in foreign markets are still not available in Indian market. Although there are very good platforms, Zerodha आ गया, NSE आ गया, सब कुछ आ गया, but still there are a lot of tools which is yet not available in India. Like I'll give you an example. अब फॉरेन में फॉरेक्स का एक अकाउंट ओपन करते हो, सबसे पहले यू गेट अ डेमो अकाउंट ऑफ $1 lakh. $1 लाख का आपको डेमो अकाउंट दे देते हैं जस्ट टू फॉर यू टू प्रैक्टिस, जस्ट टू फॉर यू टू सी की ट्रेडिंग कैसे करनी है, कैसे नहीं होनी. इंडिया में आज तक ये कॉन्सेप्ट ही नहीं आया. मतलब डेमो अकाउंट का देयर आर 2-3 कंपनीज आई थिंक दे हैव ट्राइड बट स्टिल नॉट वेरी सक्सेसफुल, आई से. बट वहां पर आपको हर ब्रोकर एक डेमो अकाउंट का ऑप्शन देता है कि आप डेमो अकाउंट ओपन करके आप ट्रेड कर कर देखो. उससे आपको पता लगेगा कि ट्रेड कैसा है, कैसा नहीं है, क्या होता है, क्या नहीं होता. $1 lakh, इट्स लाइक you are having a dummy money and you can just trade, see ki if your strategies are working and not. And these are, and this is the first part. Like there are many other things which is available. इंडियन मार्केट में है कि आप फंड्स नहीं मैनेज कर सकते हो फॉर इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे ट्रेड्स में until unless you are having an AIF Cat 3 license. बट वहां पर ऐसा कुछ नहीं है. मतलब यू कैन डू इट ओपनली, आप ये सब चीजें कर सकते हो. So at Planify we have brought in this platform where people can trade in forex market. They can open their trading account with us. They can trade themselves. This is the first option which we are giving them. And the second is if they want us to trade, then we can also take up their trading. तो हम भी उनके बिहाफ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन लोग पूछते हैं मेरे से, तो आई विल आस्क, कम टू द न्यू नेक्स्ट स्लाइड्स. I'll come to this. I should have moved this slide. कि यार आप करोगे क्या? But what will you do while you trade? So we basically trade in 8 currencies out of 220 countries. We trade in 8 currencies. These are those countries जिसमें US dollar, Australian dollar, New Zealand dollar, Canadian dollar. Then we have Great Britain pound, euro. Then I think there is a spelling mistake here. It's Swiss franc. तो स्विट्जरलैंड का फ्रैंक और जापान का जापानीज येन. दीज आर द 8 currencies only where we trade. Again, these are all the developed countries having lot of liquidity. इसमें करेंसीज ट्रेडिंग को बहुत अच्छे से फॉलो, मतलब इफ यू आर अ गुड ट्रेडर, जो ट्रेडिंग के लेवल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से फॉलो होते हैं. दिस इज द वन ऑफ द रीजन. देन वी आल्सो ट्रेड इन गोल्ड, सिल्वर, क्रूड. सो दीज आर some of the commodities where we trade. I think there is some mistake here. In the platforms are not Ethereum, Bitcoin. The heading should have been these are the cryptocurrencies. So cryptocurrencies have Ethereum, Bitcoin. We'll get this fixed, guys.
So these are the cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. So I'll talk about in detail what is now a cryptocurrency. तो पहले लोग हमसे पूछते हैं कि अच्छा ये सारी की सारी ट्रेडिंग इट हैपेंस इन यूएसडीटी. नाउ व्हेन आई से यूएसडीटी पीपल से यार व्हाट इज यूएसडीटी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्रिप्टोकरेंसी. पहले तो ये समझाओ कि क्रिप्टोकरेंसी क्या होती है. So guys, I'll explain it again in layman terms. In layman terms, if someone wants to, so today we buy online clothes, we buy online everything. Na? We order food online, we buy our stocks online. Everything happens online. But what if someone wants to buy drugs or someone wants to buy, let's say, क्या बोलते हैं उसको? मतलब ये गांजा वांजा जो व्हाट डू वी से illegal substances. हाँ जी Illegal substances. इलीगल सब्सटेंसेस है ना. इफ समवन वांट्स टू बाय दीज इलीगल आइटम्स की किसी को ये सब हीरोइन और ये भी सब ऑनलाइन मिलती हैं. सो बाय द वे दीज आर आल्सो अवेलेबल ऑनलाइन. So if someone wants to buy it, they cannot transact through their net banking because government will get to know about it. Even if you need to bribe someone, how will it happen? It cannot happen. It either needs to happen in cash. But India is one country which is moving towards cashless, है ना. हम तो UPI की तरफ. So this is one world. In India we have developed UPI and it has marvelously worked for us. कि हमने 10-10 रुपए 20-20 रुपए की ट्रांजेक्शंस हमने मतलब वॉलेट रखना ही बंद कर दिया. वी ओनली कीप मोबाइल एज अ वॉलेट. मोबाइल है तो यार पैसे हैं ही है, बस यहीं से ट्रांसफर कर देंगे. और एवरीवन इज एक्सेप्टिंग मनी आल्सो थ्रू मोबाइल फोन. सो इट बिकेम अ डिफॉल्टो फॉर अस. बट इन अदर कंट्रीज आउटसाइड इंडिया अगर आप जाएंगे तो क्रिप्टो हैज काइंड ऑफ बिकम अ डिफॉल्टो फॉर लॉट ऑफ पीपल, where people take money and give back money in terms of wallet. वहां पर बहुत सारे ऐसे platforms हैं, be it Binance, there is a lot of other platforms, TRC20, and then there is a list of platforms which is available, जिनके थ्रू आप अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो. Now on these platforms people basically do not do in terms of dollars. वो mostly cryptocurrencies में कर रहे होते हैं. और उसका रीजन क्या है? बिकॉज क्रिप्टोकरेंसीज कैन नॉट गेट ट्रैक्ड बैक. क्रिप्टोकरेंसीज में यू कैन सेंड मनी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री विदाउट एनी हेसल्स. टुडे इफ यू वांट टू सेंड मनी, मतलब आपको अगर यहाँ इंडिया से यूएस में या कहीं पे भी पैसे भेज रहे हो, यू विल हैव टू गो एंड विजिट बैंक. आपको 10 फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ेंगी बैंक की कि क्यों भेजने हैं, किस जगह रीजन की वजह से भेजने हैं. उस मतलब उस चीज के बारे में यू विल हैव टू एक्सप्लेन कि मतलब इवन इफ यू वांट टू इंपोर्ट यू विल हैव टू गिव अ लॉट ऑफ प्रूफ्स टू द बैंक, देन दे विल ट्रांसफर द मनी फ्रॉम बैंक टू द अदर कंट्री. But in crypto you have this advantage. You don't need to go anywhere. You can do it like how we operate Paytm or anything. आप basically Binance का ऐप ओपन करते हो और यहाँ से आप यूएस विद इन अ सेकंड मनी ट्रांसफर कर सकते हो. So this is another world जो क्रिप्टोज के ऊपर चल रहा है. और स्पेशली इट कैन नॉट गेट ट्रैक्ड. तो जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज होनी है, जितनी भी ब्राइबिंग होनी है, वो सब सारा कुछ इसी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होते हैं. नाउ बिटकॉइन वाज द फर्स्ट क्रिप्टोकरेंसी. सो बिटकॉइन व्हेन इट केम इन इट वाज इन सम मतलब इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 cent. नाउ इट इज क्लोज टू $35,000. Similarly, then Ethereum came in, then Dogecoin came in, and lot of other Polygon and other platforms also have evolved, and the currencies have also came in. तो ये ऐसी बहुत सारी currencies बन गई. पर guys ये currencies को we do not as an investor I will not ask you to invest in these currencies because we still believe we have a simple सा system है. कोई भी currency जब भी print होगी it has to be printed अगेंस्ट गोल्ड. तो गोल्ड के अगेंस्ट कोई भी करेंसी को प्रिंट किया जाता है. एंड या फिर गोल्ड की बजाय गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स को के अगेंस्ट भी करेंसी को प्रिंट कर सकती है. दीज आर द ओनली 2 वैलिड आइटम्स. पर बिटकॉइन इज अ टेक्नोलॉजी. इट्स अ टेक्नोलॉजी. इट डज नॉट बैक एनी मनी. तो इस वजह से हम बिटकॉइन, डॉजीकॉइन, इथेरियम, इन सब क्रिप्टो करेंसीज में we do not neither we invest और मतलब हमारा ओवरऑल इंटेंट भी कम है इनको ट्रेड करने में.
but although world चल रहा है इसके ऊपर. Now then there is one currency, one cryptocurrency which is backed by US dollar, USDT. So USDT is backed by $40 billion US dollars. तो $1 billion में around 8400 crore rupees है. So it is having in their assets they are having close to 3,20,000 crores worth of rupees. ठीक है ना, मतलब बेसिकली 40 बिलियन यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट यूएसडीटी बनी है. इट स्टार्टेड इन 2014 एंड नाउ इट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर. मतलब यू गो टू, इफ यू गो टू एनी फॉरेन कंट्री और आप मतलब इवन इफ यू विजिट एनी शॉपकीपर देयर, दे विल एक्सेप्ट यूएसडीटी. इट इज बिकमिंग द डिफॉल्ट. हो तो यूएस अंडरस्टैंड कि उनकी सुप्रीमेसी पिछले 100 ईयर से या पिछले 80 ईयर से बिकॉज ऑफ द यूएस डॉलर रही है, तो दे आर बैकिंग अप यूएसडीटी. उसकी वजह से इट इज बिकमिंग अ डिफॉल्टो एंड इट इज नॉट अदर लाइक एनी अदर क्रिप्टोकरेंसी. बिटकॉइन $35,000 से इट हैज इवन मूव टू $49,000 एंड इट हैज गॉन बैक टू $15,000 आल्सो. 5-10% की मूवमेंट भी देता है बिटकॉइन या लिटकॉइन या कोई भी और क्रिप्टोकरेंसी. पर यूएसडीटी वैसा ही है जैसा यूएस डॉलर है, तो इट डज नॉट चेंज. मतलब वो रैपिडली उतना चेंज नहीं होता, तो ये बिल्कुल वैसे ही है. नाउ इन यूएस इफ यू गो, $1 इज इक्वल टू 1 यूएसडीटी. एक यूएस डॉलर से एक यूएसडीटी आ जाता है. दुबई में आप जाओगे तो एक यूएस डॉलर से आपको मतलब ये उल्टा लिखा गया, अगेन सॉरी फॉर द मिस्टेक हियर. 1 यूएसडीटी इज इक्वल टू 1.02 यूएस डॉलर. और इन इंडिया, मतलब मैं इसको ठीक भी कर सकता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे. So guys, I actually created this. We got this done very at the last moment, and I couldn't see to it before. Otherwise, I would have removed this mistake. So ये 1.1 USDT is close to 1.02 US dollars. Similarly, in India, here 1 USDT is equivalent to close to 1.07 US dollars. अगर यूएस डॉलर 84 रुपीज समथिंग का है, तो यूएसडीटी ऑलमोस्ट 90 रुपीज पे मिलती है. अगर आप बाइनेंस में जाकर 1000 यूएसडीटी खरीदना चाहेंगे तो आपको 99 रुपीज का मिलता है. और अगर आप मतलब बिकॉज इट्स अ P2P प्लेटफॉर्म, इफ यू आर बाइंग अ बिगर चंक, लेट्स से 10,000 यूएसडीटी, it almost roughly comes at around 92 rupees ka. Here at least at preferred capital we have got it at close to 90 rupees. तो हम 90 rupees के आसपास लोगों को लेकर दे सकते हैं यूएसडीटी. तो सारी की सारी ट्रेडिंग, सबसे पहला समझने वाला पॉइंट है कि ये सारा का सारा ट्रेडिंग यूएसडीटी में होगा, विच इज बेसिकली जो हमें चाहिए होंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालने के लिए. जहां जैसे इंडिया में हम रुपीस डालते हैं, इन फॉरेन कंट्रीज in this forex trading we have to put in USDTs. Now the question comes ki how can we give you money so that we can load this money into our trading account. So here in India right now what we do any net banking transfer or we do a check or something like that. For trading account in forex you can deposit cash. तो कैश आप डिपॉजिट कर सकते हैं स्पेसिफिकली अगर आप टियर 1 टियर 2 सिटीज में हैं. सो देयर इज अ बिग, अगेन देयर इज अ प्लेटफॉर्म्स, देयर इज, जैसे हमारे बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है वैसे इंडिया में आंगड़ियाज वर्क करते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ आंगड़िया एजेंट्स वेयर से समवन इज सिटिंग इन मुंबई, सो ही कैन डिपॉजिट कैश इन टू वन ऑफ द आंगड़िया एजेंट. And here at Delhi we will receive the payment from that जो यहाँ पर दिल्ली में आंगड़ी एजेंट है, we can receive the money from him. So it works like that, and generally on 1 lakh rupees they charge around 300 rupees. These are the charges which they take for their service, and you can transact cash. तो ये एक option है. दूसरा, you can transfer online. So lot of people can wants to transfer money online. वो एक अपने अकाउंट से, let's say if someone wants to put in 10 lakh rupees, they can, so we will give you a third party account where you can do this transfer, and we will get the money in your trading account. The USDT we will get it in your trading account.
A lot of people prefer sending money, but they do not want to take the money from third party account, क्योंकि फिर again because it will showcase as income, या फिर आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि ये पैसे किस वजह से आए हैं. So a lot of people take cash back from us rather than taking money in terms of bank account. तो बैंक अकाउंट में नहीं वो लेते, बट वी आर कंफर्टेबल इन बोथ. मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मतलब यू कैन पे थ्रू कैश, यू कैन पे, यू कैन put in this money online. And third is, if someone says ki I'm already using these platforms like Binance and all other thing, I already have USDT, they can directly load USDT into their trading account. That is also an option. मतलब वो तो simple straightforward है. So these are the two options which are available. So right now for KYC we just need any one Aadhaar card, we just need any address proof. तो उसमें आप बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल या पासपोर्ट का कुछ भी भेज सकते हैं. यू डोंट नीड टू शोकेस पैन कार्ड, इट इज योर चॉइस. मतलब आप उसको अवॉइड कर सकते हैं. वी जस्ट नीड योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर. सो ऑन द राइट साइड इफ यू कैन सी, दिस इज द ऐप. मेटाट्रेडर 5 की ऐप है जिसके थ्रू सारी की सारी ट्रेडिंग होती है. नाउ व्हाट इज दिस मेटाट्रेडर? इंडिया में एवरी ब्रोकर हैज इट्स ओन सॉफ्टवेयर. तो अगर आपको जीरोधा में ट्रेड करना है तो यू विल हैव टू इंस्टॉल काइट. इफ यू हैव टू इंस्टॉल ग्रो, यू हैव टू इंस्टॉल ग्रो ऐप, है ना. एवरीबॉडी हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर्स. बट इन फॉरेन लॉट ऑफ ब्रोकर्स बेसिकली यूज, सो देयर आर लॉट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बिल्ड कर दिए जिसके थ्रू सारे जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं और उनके क्लाइंट्स हैं वो ट्रेड करते हैं. So MetaTrader is the biggest service provider in this category. It is the biggest platform. There is then CTrader. Then there are multiple other platforms also available. There are more than 88 platforms which are available in this genre also. But उसमें सबसे पहला नंबर MetaTrader 5 का है, और then there is CTrader. यही दो प्लेटफॉर्म्स हैं और उसमें भी MetaTrader ही मतलब I think सबसे ज्यादा यूज होता है. MetaTrader 5 के थ्रू आपको एक सिंपल एंड्रॉइड पे, iOS पे, ऑन योर लैपटॉप्स यू कैन इंस्टॉल इट, एंड थ्रू दैट यू कैन इजीली लॉग इन करने के लिए आपको बेसिकली देयर इज अ वेरी सिंपल स्क्रीन वेयर यू हैव टू पुट इन द ब्रोकर नेम इज प्रेफर्ड कैपिटल. सो Planify Capital Limited is PCL, Preferred Capital Limited PCL, it is the same abbreviation. So you have to put in preferred capital and then you will have to put in your client ID and then your password. You will be able to log in. Unfortunately, I do not have the screenshots ready right now to showcase on the presentation. And I was trying कि अगर मैं आपको इसके through दिखा सकूं, but because it's in the mobile, it is bit difficult. But again, I will give you guys an ask to do. मतलब we have got a demo account for you guys just for you to explore. तो आप MetaTrader 5 की ऐप इंस्टॉल करिए और उसमें प्रेफर्ड कैपिटल ब्रोकर डालिए. सर्वर अपने आप ही प्रेफर्ड कैपिटल सिलेक्ट होगा. Then you put in this account number. I'll share this account number details and the password. You'll be able to log in into one demo account which we have created. So this is one account in which we are trading also. We started only with $500 in this account. We started this account in 3rd or 4th of October. Today we are at end of this quarter. So right now this $500 is equivalent to close to मतलब $1200 के करीब है ये. मतलब it is close to $1200. So more than $700 of profit we have generated in less than 3 months. And we feel कि we are still a very conservative मतलब we are very conservative in our trades. You can see our trades happening. If you want us to take up the trading, we can obviously take it up, but then we need 4.5 lakh account. So this is the minimum investment which we are accepting, so that we give at least 5000 USDT इसमें आ जाएंगे आपके, और उस 5000 USDT के ऊपर हम आपका ट्रेड करते रहेंगे. और the settlement, whatever the profit sharing will happen every 3 months. So at end of March, then end of June, जो भी profit होगा वो share हो जाएगा. 50% investor will take, 50% preferred capital we will keep for our resources. So overall guys, इसमें अगर आप देखें 3 महीने में we have been able to generate double the amount. So if someone is putting in, let's say $5,000, in 3 months it becomes $10,000.
in next 6 months it becomes 20,000. In next 9 months it becomes 40,000, and in a year it becomes $80,000. $80,000 को अगर मैं 90 से अगेन मल्टीप्लाई करूं तो इट बिकम्स 72 लाख रुपीस, and that is the reason, or $5,000 is 5 lakh है ना, 4.5 lakh. So this is the reason why we say कि अगर आप मतलब if you are a good trader you can generate enormous wealth for you. Even if you want to do trading of your own, we are happy to do that. The minimum account and at that point is will be for $100. सिर्फ $100 से आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं. Then you can load whatever amount of money you want to do. Then obviously there is no sharing. तब हम कोई शेयरिंग नहीं ले रहे. जो भी आप प्रॉफिट लेकर जा रहे हैं, everything is yours. We do not charge anything on it. तो वो भी एक another option है. And that is pretty much from my side, guys. So I'll be happy to take up questions if there are any in this presentation. So I'll hand over the to people. If they have queries, they can ask. I know it's a bit overwhelming जिस हिसाब से इतना बड़ा, because it's a very new thing. I do understand that it is not an easy thing for people to understand. तो थोड़ा सा नया है, बट अगर आप देखना शुरू करेंगे और समझना शुरू करेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट अगर आपने समझ ली है तो ये तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा. So I'll be happy to take up questions, guys. If you have questions, any queries for me. हाँ जी मनीष जी, आप बिल्कुल अनम्यूट करके पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन. राजेश, दोनों में डिफरेंस क्या है, INR में ट्रेड करना और USDT में ट्रेड करने में? डबल है. यहाँ पे आप गोल्ड देखेंगे, अगर गोल्ड का ओवरऑल देखें, लेट्स टेक एन एग्जांपल. तो गोल्ड में इंडिया में मतलब वो पहले इंडियन रुपी में कन्वर्ट होता है. ऐसा हो सकता है रुपी मतलब लेट्स से गोल्ड बड़ा है पर रुपी थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है, तो उतने गोल्ड का इंडियन रुपी में उतना इफेक्ट ही ना आए जितना आना चाहिए. और सबसे बड़ी बात है कि आपको मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा मिलता है, तो आपके टेक्निकल चार्ट्स बहुत अच्छे से फॉलो होंगे. ओके. These are the two reasons. Any other questions, guys? अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं इस सेशन को लेके, फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, तो I'll be happy to take that up. Happy to answer those queries. आई थिंक इट विल बी बेटर. राजेश, पहले आपका जो इलस्ट्रेशन वाला प्लेटफॉर्म है, इलस्ट्रेशन का आपने जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया है, एक बार अगर उसको यूज कर लेते हैं, देन आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल बी मोर अक्वेंटेड टू व्हाट यू आर ऑफरिंग. एब्सोल्युटली. मतलब तो इसीलिए मैंने एक अकाउंट रखा. आई विल पिन द डिटेल्स इन द चैट इन केस किसी को, वैसे मैंने चैट पे डाल दी है ये डिटेल्स. आप मेटाट्रेडर 5 इंस्टॉल कर लीजिए. प्रेफर्ड कैपिटल जैसे ही इंस्टॉल करेंगे ओपन होगी, आपको पूछेगा कि ब्रोकर बताइए, तो प्रेफर्ड कैपिटल आपको लिखना होगा. अपने आप ही ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, आपको जस्ट सिलेक्ट करना है. उसके बाद सर्वर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, वो आपको सिलेक्ट करना है. तो हमने अकाउंट नंबर और पासवर्ड डाल दिया. तो दिस इज द इन्वेस्टर पासवर्ड, तो दिस इज ओनली रीड ओनली. तो आप कुछ भी ट्रेड मतलब कुछ भी कर नहीं पाएंगे, बट आप एक्सप्लोर पूरा कर पाएंगे. मतलब आप ट्रेड नहीं लगा पाएंगे पर एक्सप्लोर पूरा कर पाएंगे. आप हमारी हिस्ट्री देख पाएंगे, कब ये अकाउंट ओपन हुआ, कौन कौन सी हमने सारी की सारी ट्रेड्स करी. दैट कंप्लीट थिंग इज अवेलेबल. अच्छा, one more thing, this trading, is it open round the clock or are there certain hours? It's available 24/7, Manish ji. Okay, crypto, I think it is open by 24/7. हाँ, Monday 4:30 सुबह ओपन हो जाती है और Friday till even today Friday till 2:30 चलेगी. मतलब मैं आपको एक चीज और मतलब दिखा सकता हूँ कि how this works, just to give you guys a glimpse. So on my terminal, I can at least showcase this because I track this and we do the trading.
तो these are the trades, ये technical charts हैं, ये XAU USD is basically gold, then is silver, XPT USD is basically platinum, और फिर जितनी भी ये करेंसीज हैं फॉरेक्स की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, EUR इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, क्या आगे चल रहा है, क्या पीछे चल रहा है, तो वी कीप अ क्लोज ट्रैक ऑफ ऑल दीज ट्रेड्स एंड अकॉर्डिंगली हम अपने हिसाब से ट्रेड्स करते हैं इसमें। राजेश जी, एक क्वेश्चन था जी। तो अभी जो अकाउंट है दैट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट इज देयर एनी प्रोडक्ट दैट यू आर लॉन्चिंग ऑन दैट वन? यस, सी हम अगर आप कहते हैं कि अब आपको चाहते हैं कि इफ यू वांट अस टू मैनेज योर फंड्स, वी कैन डू दैट फॉर यू। इफ यू वांट टू ओपन जस्ट अ ट्रेडिंग अकाउंट विद अस, तो वी कैन डू दैट फॉर यू। मतलब हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एक तो है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके खुद ट्रेड कर सकते हैं, आप खुद भी सीख सकते हैं और खुद भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा है ऑप्शन कि अगर आप कहते हैं कि आप हमारा ट्रेडिंग अकाउंट भी लीजिए और मैं आपको पैसे दे देता हूं ऑन योर बिहाफ, we manage the funds, so we can also do that. So what is the minimum investment that needs to be done? 4.5 lakhs. Okay, thank you. Anything else guys, अगर किसी के पास और कोई queries हो, questions हो, तो I'll be happy to take up queries in showcase this trading view जो मैंने ओपन किया हुआ था। अगर आपके किसी के भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं रिगार्डिंग दिस फॉरेक्स मार्केट, तो यू कैन आस्क। एंड पीपल हु हैव जॉइन्ड इन लेट, we are recording this session, so we will share the video of this session for the people who have joined in between. आप एक बार गो थ्रू भी कर सकते हैं, उससे आपको पूरी क्लैरिटी भी आ जाएगी कि what do we offer in forex trading and why you should actually look at it, क्यों ये अच्छी चीज है ओवरऑल। अगर आपको स्पेशली ट्रेडिंग करने में मजा आता है, तो देन दिस इज फिर आपके लिए ये चीज जन्नत की तरह बनेगी, बिकॉज द अपॉर्चुनिटीज आर ह्यूमंगस व्हाइल यू ट्रेड इन फॉरेक्स मार्केट। Any other queries guys, if you have, please feel free. I think let us just go through the system first, then we'll get in touch. बिल्कुल। Thanks a lot. Okay Manish ji, okay. Title telecom, please you can ask your question, you can unmute yourself and ask your question. Forex is legal? See, in India there is nothing as illegal, बट ये है कि ये सेबी के प्रीव्यू में नहीं आता। तो अभी आपने मतलब 2 साल पहले या 3 साल पहले तो बहुत पॉपुलर हुआ था ऑक्टा एफएक्स। सो ऑक्टा एफएक्स की सुरेश रायना ऐड भी करते थे। सो ऑक्टा एफएक्स वाज अनदर प्लेटफॉर्म व्हिच वाज गिविंग ऑप्शन फॉर पीपल टू ट्रेड इन फॉरेक्स, बट सेबी हैज स्टिल नॉट रेगुलराइज्ड इट। हमारी इंडिया की करेंसी एक्सचेंज स्टार्टेड इन 2008 व्हिच ओनली ऑफर्स 4 करेंसीज। तो अभी मतलब we still have to open ourselves a lot to become any global power. तो अभी हमारा प्रीव्यू में नहीं है, बट इवन इफ यू ट्रेड एंड देन यू tomorrow tell गवर्नमेंट की ठीक है आप ट्रेड कर रहे थे, आपने इतना प्रॉफिट कमाया है एंड यू वांट टू पे टैक्स, यू कैन स्टिल पे दैट। गवर्नमेंट हैज पुट इन आई थिंक 30% taxes on it, जो मेरी Correct, 30%. हाँ, तो 30% of digital currency profit, right? आप 30% टैक्स पे करके आप बिल्कुल लीगली पैसे भी रख सकते हैं। बट देन देयर इज एन ऑप्शन कि अगर आप चाहें, बिकॉज इट्स इन क्रिप्टो, इंडिया में गाइस अगर क्रिप्टो को गवर्नमेंट ने वैसे ही ओपन अप कर दिया ना, मतलब किसी के लिए भी, तो मतलब अभी भी मतलब इंडियंस हैव, सो देयर वाज वन कोट व्हिच आई रेड कि टुडे पीपल हैव मोर ड्रीम 11 जो गेम है उसके ज्यादा, देयर आर मोर देन 13 करोड़ यूजर्स देन डीमैट अकाउंट होल्डर्स, और डीमैट अकाउंट होल्डर्स के कुछ थोड़े से कम ही है जो लोग क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेड करते हैं।
अभी तो हम मतलब अपने आप को बिल्कुल ओपन अप नहीं कर रहे बिकॉज गवर्नमेंट फियर्स की पैसे का वो ट्रैक ही नहीं कर पाएंगे। कभी होगा जरूर, मतलब वो चाहे कितना मर्जी जोर लगा लें, फिर तो उसको आप बैन नहीं कर पाएंगे। और फॉरेक्स ट्रेडिंग तो एज आई सेड कि पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट प्लेस इतनी बड़ी हो, 6.6 ट्रिलियन डॉलर का डेली वॉल्यूम, मतलब इवन इन इंडिया राइट नाउ वो सिर्फ 2.5 बिलियन डॉलर का है। तो 1 ट्रिलियन डॉलर में 1000 बिलियन होता है, मतलब 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन, और 1 बिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन डॉलर इज इक्वल टू ऑलमोस्ट क्लोज टू 8400 करोड़ रुपीस। तो इतने 6.6 ट्रिलियन डॉलर का वॉल्यूम रोज फॉरेक्स की मार्केट का है। तो देर इज मतलब अगर मार्केट अच्छी नहीं होती तो इतनी बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस नहीं होता। देर इज नो नथिंग विच कम्स इवन क्लोजर टू द वॉल्यूम विच हैज which this which it has got, which this forex market has got. Any other questions, guys? If you have, I'll be happy to take that up. वहीश, अभी कुछ न्यूज थी, गवर्नमेंट ने कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया था। तो इफ समथिंग लाइक दैट हैपेंस तो फिर इश्यू आ जाएगा? नहीं देखिए, वो वहां पर होता है, मतलब यहाँ पे मैं आपको अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ना कि यार ये क्या है। देयर आर अबाउट 95 प्लेटफॉर्म्स व्हिच गॉट बैंड। फॉरेन मार्केट्स ना बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करती हैं मनीष जी। वहां पर ना गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन द बिजनेसेस। तो वहां पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि ये 95 प्लेटफॉर्म्स को क्यों इवन बैन किया गया। वहां पे बी बुक चलती है। इंडिया के बीच में भी कच्चे का काम होता है। अगर आप किसी स्टॉक ब्रोकर के पास चले जाएं और अगर वो ठीक ठाक वॉल्यूम कर रहा है, मैं फ्रेंचाइजी ओनर्स की बात कर रहा हूँ, वो आपको कहेंगे कि सर आपको कच्चे में काम करना है। कच्चा इन द सेंस यू डू नॉट वांट टू ट्रेड इन ऑन द एक्सचेंज, यू वांट टू ट्रेड जस्ट ऑन पेपर। पेपर इन द सेंस आप वैसे ट्रेड करना चाहते हैं सो दैट यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस, तो आप वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स इन इंडिया रन देयर ओन बी बुक्स। आज भी अगर आप किसी अच्छे स्टॉक ब्रोकर, थोड़ा सा बड़ा ब्रोकर होगा, तो वो बोलेगा सर ठीक है, एवरी सैटरडे और एवरी मंडे वी विल डू द सेटलमेंट, और आप कैश में कर सकते हैं मेरे पास। अब ये इंडिया में अभी भी कैश पे, मतलब वो एक्सेल में या फिर वो किसी कागज में वो एंट्री कर रहा होगा एक्सचेंज पे रेट के। फॉरेन में यू हैव द ऑप्शन कि आप बी बुक ऐप के थ्रू चला सकते हो। अब जब ऐप के थ्रू चला सकते हो, और मतलब अज्यूम क्या किया जाता है कि 90-95% जो ये ब्रोकर्स हैं, ये 90-95% मतलब इन्वेस्टर्स पैसा लूज करेंगे या ट्रेडर्स पैसा लूज करेंगे। तो बी बुक चलाने वाला ये सोचता है, वही जो गैम्बलिंग खिलाता है वो क्या सोचता है कि हमेशा वो जीतेगा, है ना, कि उसके चांसेस ज्यादा जीतने। और होता भी ऐसा ही है ऑनेस्टली। अभी पीछे क्या हुआ है कि गोल्ड फ्रॉम $1800 इट हैज मूव्ड ऑलमोस्ट क्लोज टू 2075, 2075 हो गया। तो वो वन डायरेक्शनल मूव है। शॉर्ट सेलर्स ने दे हैव लॉस्ट मोर देन $200 बिलियन। तो बहुत सारे ब्रोकर्स दे आर नॉट एबल टू सेटल। तो फिर लोग जाकर शिकायत करने लगते हैं कि यार हम काम कर रहे थे, अभी पे नहीं कर रहे। तो देन गवर्नमेंट टेक एक्शन। At Preferred Capital we do not do B book. हमें कच्चे का काम करना ही नहीं है। We put all the trade on the exchange. Okay. Anything else, guys? If people have any queries, कोई और शक शुबा हो? Again, I have given the demo account in the chat. इसको आप इंस्टॉल करिए MetaTrader 5 की ऐप को, एंड यू जस्ट हैव टू पुट इन प्रेफर्ड कैपिटल। ब्रोकर का नाम डालिए, सर्वर का नाम डालिए, एंड देन यू पुट द अकाउंट नंबर एंड द पासवर्ड। यू बी एबल टू लॉग इन एंड यू विल बी एबल टू सी द हिस्ट्री। इससे आपको एक पता लगेगा। इवन इफ यू वांट नॉर्मल डेमो अकाउंट, वी कैन गिव यू अ डेमो अकाउंट जिसपे आप ट्रेड वैसे भी लगाकर देख सकते हैं। ये तो हमारा खुद का ऑपरेटेड अकाउंट है। So this is the option which we are giving. Either you can trade of your own,
where you can open an account and you can trade of your own, or if you want to trade with us, then we can also manage the funds for you. और उसमें भी हमने बात करी है कि वी राइट नाउ, अगर आप ये जो हमने डेमो अकाउंट दिया है, वी ओपन अबाउट 3 months बिफोर, तो हमने तकरीबन 3rd या 4th अक्टूबर को ये स्टार्ट किया था, और $500 का अकाउंट अभी ऑलमोस्ट $1200 का है, तो वी हैव बीन एबल टू मोर देन डबल आवर मनी इन दिस अकाउंट। तो आप इसको देख सकते हैं। इफ यू लाइक आवर ट्रेडिंग एंड इफ यू वांट टू गिव अस योर फंड्स, then we can also manage it for you. So, and the settlement will happen of the profits. The settlement of the profits will happen every 3 months. तो हर क्वार्टर के एंड में सेटलमेंट हुआ करेगा, and where we will share 50% with the investors and we will keep 50% to run our resources. और इस तरीके से भी आप ट्रेड कर सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं। If there are any other queries, I'll be happy to take that up. If you guys are having any queries in it, and people who have joined in late, they can obviously they can attend this session from the beginning. हमने वीडियो का सेशन रिकॉर्ड भी किया है। संजय जी wants to ask. संजय जी, please go ahead. राय सर जी, एक्चुअली इफ यू डोंट माइंड, थोड़ा एक क्वेश्चन पूछना था अलग सा प्लीज। एक्चुअली इंडियन मार्केट इतना अच्छा है, पहली बात। हम वैसे छोटे इन्वेस्टर को, दूसरी बात आपसे तो कनेक्टेड होके तो हम बहुत ही खुश हैं, अनलिस्टेड हो, स्टार्टअप्स हो, प्री स्टार्टअप्स हो, तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी इंडिया में होगा तो वहां पे क्यों जाए? एक्चुअली एक छोटा इन्वेस्टर पूछ रहा है एक्चुअली, और स्पेस काफी है शायद, ऐसा हमें लगता है। तो मैंने उसमें जाके मैंने क्या एक्चुअली क्या गेन कर सकते हैं? हाँ, अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है संजय जी, इसी से मैंने अपनी स्लाइड भी स्टार्ट की थी। मतलब मैं इसके लिए आपको, मतलब वैसे अगर एक लेमन टर्म्स में बोलूं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल, है ना। एक वेजिटेरियन होते हैं और एक नॉन वेजिटेरियन होते हैं। नाउ बोथ लाइक फूड। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में है, देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल, वन आर इन्वेस्टर्स एंड अदर्स आर ट्रेडर्स। जिसको इन्वेस्टमेंट करना है उसको इन्वेस्टमेंट ही करना है, और जिसको ट्रेडिंग करनी है उसको सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी है। अभी तक हमने हमेशा इन्वेस्टर्स के लिए सब कुछ किया है। we have done everything for investors. People have asked us कि why don't you do something for traders? मतलब आप हमारे बारे में सोचते ही नहीं है। अनलिस्टेड है, प्री आईपीओ है, हम बोलते हैं यार इन्वेस्टमेंट कर दो, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल अच्छा लंबा रखेंगे जब तक हमारा पैसा मल्टीफोल्ड नहीं हो जाता। और हमारे वो मल्टीफोल्ड हुए भी हैं बहुत बार। हमारे इन्वेस्टर्स इसी वजह से, आपके भी संजय जी, मतलब we are very happy कि people have generated a lot of wealth with us. Now we are bringing something for the second set of people which are traders. अब ट्रेडिंग ही करनी है तो इंडिया में ट्रेडिंग से बहुत बेटर ऑप्शंस हैं। तो फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग है, इट्स अ बिगेस्ट मार्केट, एज आई एक्सप्लेन्ड इन माय स्लाइड्स इनिशियली, कि इंडियन मार्केट में $2.5 बिलियन ट्रेड होता है, और फॉरेन की मार्केट में $6.6 ट्रिलियन रोज का फॉरेक्स की मार्केट में ट्रेड होता है। तो वॉल्यूम का ही बहुत बड़ा फर्क है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आपको टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते इसमें। अगर आप चाहें तो आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको लेवरेज 500 टाइम्स का मिलता है। इंडिया में अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप सिर्फ 1 लाख रुपए के ही शेयर खरीद या बेच सकते हैं। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैक्सिमम आपको 10 टाइम्स की लिमिट मिल जाएगी। मतलब एक जनरली फ्यूचर का लॉट 1 से 2 लाख रुपए का होता है, बिटवीन 1.5 to 2 लाख, और उसके लिए आपको 25 से 50 हजार रुपए का मार्जिन देना होता है। तो 10 टाइम्स का वॉल्यूम, 10 टाइम्स का मैं मैक्सिमम मार्जिन गिन लेता हूं। जबकि फॉरेन में आपको 500 टाइम्स का लेवरेज मिलता है। तो 1 लाख रुपए के अकाउंट में आप 5 करोड़ का माल खरीद या बेच सकते हो। फिर जो करेंसीज हैं, दे आर वेरी स्टेबल। आपने यूएस डॉलर को देखा होगा, वो 84 रुपीज खड़ा है तो वो 84 ही खड़ा है। 1 साल बाद पता लगेगा वो 85 हो गया, बिकॉज ऑफ आवर करंट अकाउंट डेफिसिट एंड अदर थिंग्स, इन्फ्लेशन और उन सब चीजों की वजह से धीरे धीरे हम वो यूएस डॉलर बढ़ता रहता है। बट इट इज नॉट कि 84 से वो टूट के एक दिन में 50 आ गया और 2 दिन बाद वो फिर 84 चला गया। ऐसा कभी आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा।
because currencies are very stable. स्टॉक मार्केट में ये होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी. दिस इज द रीजन इवन गवर्नमेंट ने वो वन टाइम लेवरेज होने के बावजूद पीपल लूज अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत है. करेंसीज के बीच में वॉलेटिलिटी वैसी नहीं होती. और सबसे अच्छी चीज, यहाँ पे कमीशन नहीं देने पड़ते. यहाँ स्प्रेड के बीच में ही सारा का सारा काम हो जाता है. मतलब अगर आपको 100 रुपए की आपने चीज खरीदी है, 99.75 जब आएगा रेट तो अपने आप ही खरीदा जाएगा. तो आपको कमीशन ऊपर से कुछ नहीं पे करना पड़ता. दिस इज हाउ फॉरेन मार्केट्स वर्क. तो इन सब रीजंस की वजह से वी फील पीपल शुड लुक, स्पेशली पीपल हु आर ट्रेडर्स, दे शुड लुक एट डूइंग ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट. तो मैंने आपको सम अप कर दिया सारी प्रेजेंटेशन का. आप पूरी स्लाइड्स भी सुन सकते हैं. विल गिव यू द वीडियो. Okay. Any other questions or any other queries, guys? If you have anything, किसी को कुछ गोल्ड सिल्वर कहीं पूछना हो? Hi Rajesh, how are you doing? We are doing great. Yeah, Pushpendra this side. Actually, I joined little late, so wanted to know like if you could share this presentation if it is okay to you. I wanted to understand the bullish and this sign. I don't understand this sign, like what this actually shows, like red, blue, what is top edge, what is bottom edge. So I'm really interested to know all these things. Love to do that, Pushpinder ji. So I'll share this presentation with you. In fact, people who have joined in, they can also ping in to the folks here. मैं पुष्पिंदर जी, आप तो मेरे साथ ही कनेक्टेड हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा ये स्लाइड. तो हम प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देंगे, वीडियो भी शेयर कर देंगे, उससे आपको पूरी क्लैरिटी भी मिल जाएगी. और इवन अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी भी है तो उसके भी वीडियोस मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ. There's a lot of content which is available on YouTube on it. Yeah, ठीक है, वो थोड़ी हेल्प हो जाएगी. Done it. Okay. Any other question, guys? If people have any queries, feel free to ask. I know कि I'm holding you up. Friday night है, Friday evening है, और वो भी न्यू ईयर की, तो मतलब मैं पाप कर रहा हूँ आपको रोक कर. I will not want to do that for a very long time. I'll take a few minutes before I close down this session, and I'll then open up. I'll let you guys go to enjoy your New Year drinks and New Year parties. पर तब तक के लिए अगर कोई आपकी क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं अराउंड रिगार्डिंग दिस फॉरेक्स मार्केट, आप मेरे से पूछ सकते हैं. I'll also want to wish each one of you a very, very happy new year and a very prosperous 2024, guys. I hope everyone, so this year, may God brings lots and lots of joy, health, happiness, and success for each one of you. Or I'm very thankful that so many people joined in the session today, and taking out time from your busy schedule is not easy. I'd like to thank each one of you. So guys, I'll share this deck and the video presentation. If there are any further queries, उसके बाद आपको देखकर भी हमने एक डेमो अकाउंट भी दिया है चैट के बीच में, उसके बीच में भी आप लॉगिन करके देख लीजिए. फॉर द पीपल हु जॉइंड इन लेट, MetaTrader 5 ऐप इंस्टॉल करके यू कैन जस्ट लॉग इन इनटू दैट अकाउंट. प्रेफर्ड कैपिटल, उसमें ब्रोकर का नाम डालना होगा आपको, और सर्वर भी प्रेफर्ड कैपिटल है. देन द अकाउंट नंबर एंड द पासवर्ड. You can see a $500 account has generated a profit of close to $700 in less than 3 months or close to 3 months. So हमने अपनी कैपिटल को 100% से ज्यादा appreciate किया है. This is the kind of returns which we have been able to generate through our algo from last consistent 8 months. And now we feel confident that we can provide this service also to our investors who wants to trade in forex market. अगेन ऑप्शन इज, आप हमारे पास ओपन भी करके अकाउंट अगर आप खुद भी ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं. एंड इफ यू वांट अस टू मैनेज योर फंड्स, वी कैन आल्सो डू दैट. एंड इफ देयर, आई विल शेयर द डेक एज वेल एज द प्रेजेंटेशन विद यू गाइस इन द वीडियो लिंक आफ्टर वी एंड दिस सेशन. एंड इफ देयर आर एनी क्वेरीज, आई विल बी हैप्पी टू टेक दैट अप ऑफलाइन. Thank you so much, guys, for joining in.
all the very happy New Year. Thanks, Ajay. Same to you. Happy New Year to you also. Okay, guys. Okay, bye.